Hey guys, welcome to GoPrep. How are you all friends? Do let me know in the comment section. बच्चों कैसा रहा आप सभी का स्लॉट 3 का GTSC का एग्जामिनेशन? Everyone do let me know in the comment section. फिर हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. I hope it all went good, right? And yes, just in case if you have missed this exam over here in the slot 3 portion over here for all the class 9 students, you definitely have one more slot left. That is the slot 4. That is the last slot for this phase of the GTSC examination. And if you want to get registered for that phase, the slot as such, the last slot, that is today at 8 p.m. Make sure that you get registered for that part using the link present in the description of this particular video. ठीक है बच्चों? या फिर आपने शायद अगर ऑलरेडी GoPrep का ऐप इंस्टॉल कर रखा होगा, so there also you would be getting all the other details of the GTSC as well. ठीक है? So just in case if you are facing any issues, you can find all the details of the GTSC examination in the description of this video. ठीक है? चलिए. So let's get started with the detailed discussion of the slot 3 examination. I am Nirbhay over here. We are going to start off with the physics portion right away. Okay? By the way, सब लोग एक बार comment में बताएंगे कि कैसा गया आपका physics का portion specifically. I believe so. It was relatively easier as such, right? Do let me know in the comment section, everyone. चलिए. ठीक है. So moving on to the question number 1 that says that when a coin and a feather are dropped simultaneously from the same height, the coin strikes the ground first. Why is it so? देखिए, there can be multiple statements over here that are true. ऐसा हो सकता है. लेकिन what is the reason over here जिसकी वजह से जो coin है वो ग्राउंड में स्ट्राइक पहले कर रहा है? The reason over here is the option C over here. So many of you might be wondering कि भाई gravitational force is less for the coin than it is for the feather, है ना? इस टाइप से आपको लग रहा होगा शायद, या फिर coin is heavier than the feather, या फिर all of the above भी लग सकता है. लेकिन the correct explanation as to why the coin strikes first और जो feather है वो नीचे देर से आता है is because जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, दैट इज लेसर इन द केस ऑफ द कॉइन. जो एयर का जो ड्रैग फोर्स होता है दैट इज लेसर इन द केस ऑफ द कॉइन एज इट इज फॉर द फेदर. इसलिए फेदर बहुत धीरे धीरे नीचे आता है और जो कॉइन होता है दैट मूव्स वेरी फास्ट इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. सही है? सो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग इनटू द क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ऑफ यू लुक इनटू दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्टली. बच्चे इसमें शायद बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ये 20 क्या है, 20 क्रेस्ट है, 20 ट्रफ्स है, राइट? सो लेट मी जस्ट टेल यू ओवर हियर बच्चों कि 20 क्रेस्ट और 20 ट्रफ्स मेक 20 साइकिल्स और 20 वेव्स एज सच. ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास अगर ऐसे कोई भी एक वेव है, ठीक है, सो वन वेवलेंथ विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर लेंथ. एक वेवलेंथ की लेंथ ये होगी पूरी, जहां पर एक क्रेस्ट होगा और एक ट्रफ होगा यहां पर. ठीक है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ इंक्लूड करके एक वेवलेंथ यहां पर बन रही है. So if there are 20 crests and 20 troughs, so you are going to get 20 wavelengths as such over here यहां पर. ठीक है बच्चों? So या फिर 20 waves आप यहां पर ऐसे बोल सकते हो. So the question is basically that if you are getting 20 waves in 0.2 seconds, मैं आपको 20 waves ऐसे 20 cycles ऐसे मिल रही है, तो फिर एक सेकेंड में कितनी मिलेंगी? That is the question over here. So for that purpose we'll have to simply multiply it over here and you will be able to observe कि भाई यहां पर 100 आ जाएगा इसका आंसर. And that is going to be the correct answer of this particular question. कि आपका जो आंसर होगा यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, right? All of you can check it out. 100 hertz is going to be the frequency of the waves over here. That is the correct answer. Correct है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 says that a city was planning to build a dam. So what do we understand from here? सिंपल सी बात है, वी नो दैट देयर इज दिस वाटर ओवर, यहां पे पूरा पानी भरा हुआ है. दिस इज ऑल वाटर एज सच ओवर हियर, राइट? एंड दिस इज द टॉप सरफेस. ये जो ऊपर है ये टॉप सरफेस होगा. द प्रेशर इंक्रीजेस एज यू गो डाउन. जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है. देयरफॉर यू नीड टू हैव अ वेरी वाइड डैम्स एट द बॉटम पोर्शन. नीचे की तरफ सबसे ज्यादा वाइड होने चाहिए. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए ओवर हियर, दैट इज द इंजीनियर ए. That will be the correct answer of this question number 3. ठीक है? Moving on to the question number 4 over here. Read the statements everyone. जिन्होंने भी अगर ये क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं था, शायद बच्चों ने छोड़ दिया, सोच लिया कि यार ये तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, चलो इसको स्किप करो, है ना? How many of you thought that? इसको स्किप नहीं करना था. इट्स अ वेरी सिंपल एंड बहुत ही बस आपको क्वेश्चन पढ़ना था और आपको आंसर यहां पर मिल जाता है ना?
तो कैसे करना था, यहां पे सिंपल सी बात है बच्चों, क्वेश्चन ये था, यहां पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, एज आई बिलीव सो ऑल ऑफ यू कैन चेक दोस स्टेटमेंट्स एज सच ओवर है ना, कैन यू ऑल चेक आउट दोस स्टेटमेंट्स, ABCD यहां पर स्टेटमेंट्स गिवन है। सो डेफिनेटली यहां पर देखेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डेंसिटी आर नॉट सेम नहीं होते हैं ये, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। Then comes the part that maximum value of the speed of light can be greater than 3 into 10 to the power 8 meter per second. नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। The maximum speed of the light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meters per second approximately, right? So ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। Then comes the second part, that third part over here, more the value of, ये क्या है, ये है refractive index, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों refractive index को, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरे ख्याल से सबने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा यहां पर, है ना। मोर द वैल्यू ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम, मोर इज इट गोइंग टू बी ऑप्टिकल डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं ये, एंड देयरफॉर मोर द वैल्यू ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल इट बी इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। Then comes the fourth part that says that more the value of mu for a medium, lesser is going to be the velocity of the light. बिल्कुल सही बात है, it is absolutely correct over here, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बात है यहां पर, therefore the option C, that is the option C, that is part 3, point number 3 and point number 4 are correct, whereas the remaining 2 are wrong over here, ठीक है, सही है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे, यहां पर सबने शायद पढ़ा हुआ होगा, आपने जो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, राइट। बट फिजिक्स में पूछा गया है तो इसका आंसर सिंपल सी बात ये हो जाएगी, व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। देखिए यहां पर अमाउंट ऑफ कॉपर विल रिमेन द सेम, व्हाई, बिकॉज ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है या फिर इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड में जा रहा है, यही हो रहा है, इंटरनली ही कॉपर का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अंदर बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है कि कॉपर को बाहर निकाल रहे हैं आप, या फिर कॉपर का बाहर आउटवर्ड फ्लो हो रहा है या फिर इनवर्ड फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। सो द इन ऑल टुगेदर द अमाउंट ऑफ कॉपर इन द सॉल्यूशन विल डेफिनेटली रिमेन द सेम। आपने अगर इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, यू कैन डेफिनेटली रिकॉल फ्रॉम दैट पार्ट, ठीक है बच्चों। Moving into the question number 6 over here, you can see that there are hardly any numerical questions over here. ये वाला भी एक आपके पास सिंपल फैक्चुअल और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों को, आपको इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ये चीज तो सबको शायद पता होगी। व्हाट डू वी मीन बाय एन इलेक्ट्रोस्कोप? सो मैं यहां पर एक रफ फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर इज दैट कि यार यहां पे ऑलरेडी एक लेट से ऐसे करके एक रॉड आ रही थी और यहां पर 2 लीव्स ऐसे अटैच्ड थी, लेट्स से दीज आर द 2 मेटल प्लेट्स ओवर है, ये ऐसे करके अटैच्ड है, ठीक है, एंड दे देमसेल्व्स आर ऑलरेडी रिपेलिंग ईच अदर, ये ऑलरेडी अगर एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझ गए, है ना। अ न्यूट्रल टेलिस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप इज टच्ड विद अ नेगेटिवली चार्ज रॉड, व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप आफ्टर द रॉड इज रिमूव्ड। अच्छा ये तो अलग है, सो दिस इन दिस क्वेश्चन सिंपल पार्ट ओवर हियर, यहां पे रिपेल नहीं कर रही है, ये सिंपल न्यूट्रली चार्ज है, सिंपल सी बात हो जाएगी। आप अगर उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करोगे रॉड को तो फिर उसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज ही आएगा। यहां पर इस तरह से लेट से मैंने एक रॉड ली, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज थी, तो इसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज यहां पर ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके, और फिर उसके बाद ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज दीज ग्रीन रॉड्स विल ऑल्सो अटेन द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट, और लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, फिर ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे, राइट। सो व्हाट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप आफ्टर द रॉड इज रिमूव्ड? इलेक्ट्रोस्कोप को के अंदर अभी भी नेगेटिव चार्ज ही बना रहेगा, दैट इज द चार्ज दैट इट हैज ऑब्टेन्ड नाउ। सही है बच्चों, आई बिलीव सो ऑल ऑफ यू दिस वाज अ रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। पहला वाला हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दैट यू माइट नॉट हैव गॉट, बट दिस वन तो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉट एज आई बिलीव सो, राइट। कितने बच्चों के सारे 6 के 6 क्वेश्चंस करेक्ट आए इन द फिजिक्स पोर्शन? Let me know in the comment section, and if you have got them, can I get a thumbs up from everyone in the comment section over here? Can I get a like from everyone over here? Yes, perfect. So guys, let's now move on to your chemistry portion. Hello and welcome students. आपका GTSC का एग्जाम तो अब हो ही गया है, right? And I am bringing specially for you people chemistry के solutions. GTSC slot 3 जो हुआ है आपका एग्जाम,
उसके मैं सॉल्यूशंस लेके आ रही हूँ। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आए थे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू आई विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन, जिसमें आपको बता रही हूँ कि केमिस्ट्री के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं किस किस क्वेश्चन के। ओके, and I am your chemistry teacher here at GoPrep and my name is Akanksha Khandelwal. So let's quickly start. आपका पहला क्वेश्चन जो था वो ये वाला था, जिसमें रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो आपस में एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, ऑलमोस्ट मोर देन 70%, देन ऑक्सीजन इज देयर ऑलमोस्ट मोर देन 20%। तो वो दोनों आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करते और आपके ये ऑक्साइड्स जैसे ये हो गया या ये हो गया ऑक्साइड्स क्यों नहीं बनाते हैं? एंड द रीजन दैट इज मेंशन्ड है वो बिल्कुल सही रीजन है, क्योंकि उन दोनों को रिएक्ट करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए, जिसपे आप देख सकते हो जो असर्शन है और जो रीजन उसका दे रखा है, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। The next question that you had was gas A is stored under high pressure. It is used for power generation as a fuel for transport vehicles. Identify A. The key word here is high pressure. मतलब उसे हाई प्रेशर में स्टोर करके रखना पड़ता है एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। सो इट हैज टू बी व्हाट, आपको पता है CNG जिसे हम कहते हैं, दैट इज यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे आसपास, कैब्स के अंदर है, ऑटोज में है, बसेस में है, इन सभी में आपके CNG का यूज होता है, राइट? दैट इज योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेयर एज सब स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मैम ऑप्शन बी क्यों नहीं है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है गाइस, वो आपका यूज होता है इन कुकिंग पर्पसेस में, उसे आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज नहीं करते हो। बेसिकली आप पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई कर रहे हो उस केस के अंदर, ठीक है? तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैड वाज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रेफर्ड टू बी worn इन समर बिकॉज दे कैन एब्सॉर्ब मॉइस्चर। आपको लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग सबके सब कॉटन प्रेफर करते हैं। वी जस्ट कैन नॉट बेयर द सिंथेटिक फाइबर्स एट ऑल, राइट? सिमिलरली जो स्टेटमेंट 3 है, a monomer is a big molecule formed by the combination of large number of small molecules called polymers. The words have been interchanged, guys. Basically जो big molecule है वो होता है polymer और जो छोटे 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 units हैं that is your monomers. Okay, so for this the correct answer is only statement 2. Okay, सेल्यूलोज आपको पता है सेल्यूलोज से ही आपका रेयन बनता है। So for this the correct answer was option D, that is only statement 2. Now let's move on to the next question. The innermost zone of unburnt combustion is the blank part and blank in color. ठीक है, so आप देख सकते हो कि ये फ्लेम है। बेसिकली कंबशन के लिए हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। प्लीज रिमेंबर फॉर कंबशन यू रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है? अब यहाँ पे अनबर्न हो रहा है, मतलब इतना ऑक्सीजन का कंटेंट है ही या नेग्लिजिबल ऑक्सीजन का कंटेंट है, जिसकी वजह से कंबशन हो ही नहीं रहा है, एंड दैट वुड हैपन ऑब्वियसली इन द इनर मोस्ट जोन के अंदर। तो इसीलिए वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए हीटिंग भी कम होगी। सो दिस इज द लीस्ट हॉट जोन एंड इट इज विच कलर? This region is of black color. So for this, the correct answer was option A, that the innermost zone of unburnt combustion is the least hot part. क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इतना नहीं है and it is black in color. Okay, so far I am sure आप सभी को पेपर बहुत easy लग रहा होगा अभी तक तो। Okay, so जिन लोगों ने अभी पेपर नहीं दिया है guys, जल्दी से GTSC का पेपर दे दो, क्योंकि you can see the questions are very very simple, right? Then the next is there, a polymer has been identified to possess the following properties. Now the key word here is it is used as a substitute for wool, okay, and it's also called Orlon. इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? About artificial wool, right? We are talking about artificial wool, okay, and you know artificial wool को हम acrylic भी कहते हैं, okay? Artificial wool is also called acrylic, and जो पॉलीमर है उसमें बेसिकली दैट इज पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी, ओके? पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल है आपका आर्टिफिशियल वूल जिसे हम कहते हैं, ओके? दैट्स आल्सो कॉल्ड एक्राइलिक और ऑर्लॉन भी, ओके? सो दैट इज योर आंसर, सी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन।
Similarly, you had a very interesting question क्योंकि अब जुलाई का मंथ आ ही गया है and you know everyone is very fond of environment and everyone wants to save the environment. तो इसीलिए हम लोग सभी लोग ट्रीज को बहुत ज्यादा प्लांट करते हैं, राइट? एंड जुलाई के मंथ में बहुत ही स्पेशल ओकेजन आता है जिसे हम सब जानते हैं, दैट इज कॉल्ड वन महोत्सव, जिसके अंदर हम बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करते हैं. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया जाता है in order to save the environment. Now, the next question was very simple and very interesting question actually. इसमें बेसिकली आपका रिएक्टिविटी सीरीज पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें वो लोग बताया है आपको कि एल्यूमिनियम जो है वो आपके आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है इन द फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस. देन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन जो है, आयरन इज एबल टू डिस्प्लेस ओनली कॉपर बट नॉट एल्यूमिनियम. दिस सजेस्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम दोनों आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस करके कलरलेस सोल्यूशन हमें दे रहा है, इसीलिए एल्यूमिनियम इज द मोस्ट रिएक्टिव. देन इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, आयरन अगेन कैन डिस्प्लेस कॉपर, ठीक है, इसलिए कलर चेंज हो रहा है, मगर एल्यूमिनियम को क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है इसलिए कलर चेंज नहीं हो रहा है. ओके, दिस सजेस्ट दैट आयरन इज लेस रिएक्टिव देन योर एल्यूमिनियम. So the order that is followed is your option C. Aluminium is the most reactive, followed by copper, and then followed by iron, then you have your copper. ठीक है? And this question is directly based upon your reactivity series of metals. So I think सभी केमिस्ट्री क्वेश्चंस आप सबको बहुत इजी लगे होंगे. अगर किसी ने अभी तक GTSC एग्जाम नहीं अटेम्प्ट किया है बच्चा, तो जल्दी से अटेम्प्ट कर लो. Okay, in the next slot quickly attempt this exam, and the description, the link for this has been given to you in the description box. Also Monday के दिन हम आपके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, so do attend that workshop also. Now we'll be moving towards, after the chemistry section हम लोग मूव करेंगे आपके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. So bye bye. Hey guys, I hope you really did well in your chemistry and physics वाला portion. Now let us try to discuss कि हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे थे, राइट? राइबोसोम्स कैन बी फाउंड इनसाइड. बेटा यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, इनसाइड नहीं पढ़ते. तो बेटा राइबोसोम जो है किसके अंदर मिलेगा? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इज द वन. राइबोसोम जनरली आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, ER पे, ER के मेम्ब्रेन पे या साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, बट दे विल नॉट बी फाउंड इनसाइड ER. तो बेटा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है ER और माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर वाज D. सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट सेल, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ बेटा सेल वॉल इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल के लिए, बट बिकॉज ताकि वो टॉलरेट कर सके, प्लांट सेल आपका जो सेल वॉल है वो टॉलरेट कर सके, आपका प्लांट सेल टॉलरेट कर सके लेस वाटर या हाई वाटर कंसेंट्रेशन. बट बेटा सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है, वो सबको आने देता है, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आराम से आ सकता है बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल, डिफ्यूजन आराम से हो जाएगा, राइट? सो द रीजन इज वेरी रॉन्ग, राइट बेटा? तो करेक्ट आंसर वाज सी. स्मॉलर सेल्स आर मोर एफिशिएंट. बेटा मैंने आपको याद होगा कि हम ये चीजें पढ़ते हैं, जब आप सेल्स की साइज रिड्यूस करते हो तो आप उतने ही वॉल्यूम ऑफ सेल में, अगर आपने एक सेल को दो भाग में बांट दिया तो अब वॉल्यूम तो बराबर है क्योंकि आपने उसके दो टुकड़े कर दिए, तो टोटल वॉल्यूम अभी भी उतना है, बट उसी वॉल्यूम में आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना. सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से आपका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा. ठीक वैसे ही जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में बहुत सारे गेट्स होते हैं, क्यों? ताकि सब्सटेंसेस आ सकें और जा सकें. सो द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो ट्रू. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीफली एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर ऑफ. ना बेटा यहाँ जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें से आपको सोचना है. तो जी हाँ, ये बात भी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ एक्सटेंट तक छोटे मोटे कार्बोहाइड्रेट्स बना सकता है, बट क्वेश्चन ने क्या पूछा? चीफली, यानी हम RER की बात कर रहे हैं. अगर SER की बात करेंगे विल टॉक अबाउट लिपिड्स, बट हम RER की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर वुड बी प्रोटीन. Cell walls are made up of substance glucose. Which of the following would have good quantity of cellulose? यानी हमें क्या ढूंढना है बेटा? प्लांट सेल ढूंढना है. अब आपको पता है एग यॉक और हेयर ऑफ हेन तो प्लांट सेल है नहीं. आपका पेपर जो है बेटा वो हमारा बार्क से बनता है प्लांट के. दैट मीन्स दैट इज योर आंसर.
राइट? बस इजी था, थोड़ा सा बस घुमा के पूछ लिया। क्रोमैटिन, ना बेटा डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये तीनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना। डीएनए रैप्स अराउंड प्रोटीन्स टू कॉल क्रोमैटिन, और यही क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाएगा तो उसे क्रोमोसोम कहते हैं। बट अगर आपसे पूछा क्रोमैटिन क्या है, तो इट इज डीएनए एंड प्रोटीन। आंसर वाज ए फॉर दिस वन, राइट? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किसका बना है बेटा? ये थोड़ा सिंपल हो गया एकदम, है ना? हमने सोचा था कि भाई एक सिंपल क्वेश्चन तो जरूर देंगे, तो सेल वॉल बेटा किसका बना है? सेल्यूलोज का, राइट? तो अगेन दिस इज हाउ यू डिड इट। अगेन टाइम फॉर मैथ्स डिस्कशन हियर, तो आई एम वेरी श्योर आपके मैथ्स टीचर अब आएंगे एंड यू विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट विद हिम। सो दिस इज अवर मैथ्स पेपर, है ना? मैथ्स पेपर पे आ गए यार हम लोग। मैथ्स पेपर में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि इस रेशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1/26 आ जाए। जब भी किससे होता है, व्हाट नंबर दैट शुड बी, उसको क्या मान लेते हैं? x। तो मान लिया कि माइनस के 8/39 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया? 1/26। तो हम क्या लिखेंगे? x। अब ये 39 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 26। ठीक है, माइनस भी ऊपर ले जाओ। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? -8 into 26 इज लाइक 208 आई थिंक ये हो जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा -39/208। क्या हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 13 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सही बात है ना? 13 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहा है और ये 16 टाइम्स आ रहा है आई थिंक, ठीक है? तो माइनस का 3/16, बी मस्ट बी द आंसर। बी आ रहा है ना यार आंसर? सही बात है ना? बी आ रहा है आंसर, पक्का? समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चों को? ठीक है, नाउ लेट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है यार हमसे कि यहाँ पे 1/3 ये माइनस का साइन है। अब जब भी आपको पता है a की पावर माइनस एनीथिंग, वो हो जाता है 1/a की पावर दैट थिंग, ठीक है? सिमिलरली हम ये यहाँ पर करेंगे, इसके ऑप्शंस भी लिख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/3, 3 की पावर -1 लिख सकते हैं इस वाली चीज को, तो कुल मिला के 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये 2 की पावर -1 है, तो ऊपर जाके 2 की पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है? डिवाइड में अब ये 4 की पावर -1 है, और तो हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 - 8, जो कि क्या होता है? 19 डिवाइडेड बाई 64। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका? फर्स्ट ऑप्शन सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बढ़िया है ना यार? सही समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसे अपने आपको थोड़ा स्मॉल भी कर लें, देखो तुम्हारे सामने सामने कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई हमें? आउट ऑफ द गिवन नंबर, कौन सा नंबर एग्जैक्टली इन सभी नंबर से डिविजिबल है? ठीक है, हमारे जो गिवन नंबर है, कौन सा नंबर एग्जैक्टली इन सभी से डिविजिबल है? हमको पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर मस्ट बी देयर एलसीएम। वो क्या होना चाहिए? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बेसिकली डेफिनेशन ही होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल लीजिए आप। तो एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 20 इज 120, ठीक है? अगर इनका एलसीएम आप लीजिएगा तो वो क्या आएगा? 120, और उससे वो किससे डिविजिबल है? वो 3600 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आंसर हमारा यही आ जाएगा, सी। लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये तो सिंपल है ना यार। अच्छा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है यार? प्लस वाई की तो जरूरत ही नहीं है, माइनस वाई का होल स्क्वायर ले लो, ठीक है? तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ठीक है? तो सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके क्या आ जाएगा यार? 7 स्क्वायर 49 प्लस 18, तो ये 49 प्लस 18 67 ही आने वाला है, ए आंसर है इसका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ बाय 60, ठीक है? इस क्वेश्चन को क्या आप ध्यान से समझ रहे हो कि कोई भी नंबर है वो अपने 25% से 60 एक्सीड करता है। मतलब मान लिया कि कोई नंबर क्या है आपका x, ठीक है? तो वो उसका 25% क्या हो गया? 25% ऑफ x उससे 60 एक्सीड करता है, ठीक है? तो 25% आप इसे बोलते हो 25 इंटू 100 बाई एक्स, या x बाई 4 भी लिख सकते हो, ठीक है? तो यहां से यार सिंपल क्या आ गया? x माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू 60। यू कैन से 3x4 इक्वल टू 60। 3 से ये कैंसिल हो गया, 80 आ गया ना यार हमारा, ठीक है? 4 इंटू 20, 80 मस्ट बी द आंसर, ठीक है? लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 इज 10% पर एनएम फॉर 2 years 3 month कंपाउंडेड एनुअली इज। ठीक है, तो क्या फॉर्मूले पता है सभी बच्चों को? ठीक है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% दे रखा है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 4,000 दे रखा है। ठीक है, एन जो दे रखा है वो दे रखा है 2 years 3 month। 2 years 3 month को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 + 1/4 years, ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसे बोल सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है? हमें फॉर्मूला पता है P × 1 + R/100 की पावर n, ऐसे पता है हमें फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई भी लिखना पड़ेगा ना, 1 + R/4 है ना, मतलब ये टोटल अमाउंट हमारा कुछ ऐसे ही हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई में 1 + R/4 × 100 भी आएगा यार यहाँ पे, सही बात है ना। मतलब ये हमारा फंडा होना चाहिए। ठीक है, जहां पे R जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट है और जहां पे N जो है वो टाइम है इन ईयर्स, वो क्या टाइम है इन ईयर्स। ठीक है ना। यहाँ पे यार ये डिवाइड का साइन आएगा, तो आप यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल दीजिए। P की वैल्यू आ गई 4,000, 1 + R की वैल्यू है 10, यहाँ पे % आ गया, N की वैल्यू शुरुआत में 10 हो गया, मल्टीप्लाई देन क्या हो गया 1 + R तो वही है 10/4 लिख लिया, डिवाइड बाय 100 लिख लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बस यही तो आया यार, है ना। 10/4 डिवाइड में 100 लिख लिया, एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे तो 1/40 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे 4961 आई थिंक आ जाना चाहिए ना, 4961 ये आ जाएगा अमाउंट यहाँ से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 4961 माइनस 4,000, 4961 माइनस का 4,000, ऐसे ही निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 961 आ जाना चाहिए ना यार, 961 इज द आंसर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 70 km/h और हमें बताना है 20 मिनट्स में वो कितना कवर करता है। ठीक है, हमें क्या फॉर्मूला पता है? हमें पता है स्पीड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहां पर डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, तो हम अगर 20 मिनट्स और km/h में हमें स्पीड दी हुई है, तो अगर हमें 20 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस निकालता है निकालना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 60, 1/3 आवर में वो कितना डिस्टेंस निकालता है। ठीक है, 1 आवर में है ना, 20 डिवाइडेड बाई 60, 1/3 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। 1 आवर में अगर वो 75 जाता है, तो 1/3 आवर में वो कितना जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 25 इज द आंसर। ठीक है, लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक पंप जो है वो सिस्टम को 2 घंटे में भरता है। ठीक है, और अब मान के चलते, चलो इस क्वेश्चन में ना वही लेटिंग वाला गेम है कि हम मान के चलते हैं कि जो लीक है वो सिस्टम को x घंटे में एम्प्टी कर सकता है। ठीक है, जो लीक है वो सिस्टम को x घंटे में एम्प्टी करता है। ठीक है, लीक कैन एम्प्टी फुल टैंक इन लेट x आवर्स, x ही निकालना है हमें। ठीक है, और ये हमें क्या दिया है, ड्यू टू लीक टैंक फिल्स 2, ये ऐसे दे रखा है यार, है ना, 2 सही 1/3, मतलब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 7/3 आवर्स लग जाते हैं उसको फिल होने में, मतलब इतना टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द सिस्टम फिल्ड बाय द पाइप इन 1 आवर इज 1/2। ठीक है, 1 घंटे में कितना पार्ट हमारा सिस्टम का भरता है, हाफ पार्ट भरता है, हाफ पार्ट भरता है 1 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे में वो पूरा भरता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द सिस्टम एम्प्टीड बाय लीक इन 1 आवर विल बी 1/x। ठीक है, ये फिल इन 1 आवर इज 1/2 पार्ट। ठीक है, और लीक इन 1 आवर, ठीक है, लीक इन 1 आवर मस्ट बी 1/x पार्ट, क्योंकि x आवर में मान लिया हम कह रहे हैं कि वो लीक से फुल एम्प्टी हो रहा है, लीक से वो फुल एम्प्टी हो रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो 1/x आवर में वो पूरा हमारा हम कह सकते हैं कि लीक हो जाता है। अब हम क्या बोलेंगे कि 1/2 जितने 1 घंटे में वो कितना भरता है, 1/2 पार्ट, और 1 घंटे में वो लीक कितना होता है, 1/x पार्ट। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस 1/x मस्ट बी इक्वल टू 3/7, बिकॉज ये 7/3 में वो पूरा भरता है,
तो 1 घंटे में विथ लीक वो कितना चलेगा, इतना चलेगा। इसका उल्टा, ठीक है, जैसे हमने x को उल्टा किया, यहां से x सॉल्व कर लोगे, बड़े आराम से कर लेंगे यार, चलो करते हैं साथ मिलके। तो क्या हो जाएगा, 1/x उधर जाएगा, 1/2 माइनस 3/7। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7 - 6, दैट विल बी 1, ठीक है, ओवर 14, ठीक है। तो 1/x 14, तो मतलब x 14 आ जाएगा। तो 14 आवर में पूरा लीक हो सकता है, ठीक है। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जी। अब अगेन यहाँ पे हमारा पॉलीगन का क्वेश्चन आ गया। पॉलीगन चैप्टर यार हम सभी बच्चों ने साथ मिलके पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में हमें एक रिलेशन पता है, ऑलवेज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो मान लिया कि एक्सटीरियर एंगल x है, तो इंटीरियर एंगल उसका 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा 3x। तो यहां से 4x 180 आ गया, तो x क्या आ गया, 180/4 45 आ गया। तो अब बताना नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला बड़े आराम से पढ़ा हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल हमारा आ गया 45, ठीक है। यहां से एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड क्या होता है हमेशा 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स ये हमने पॉलीगन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाई 45 डिग्री, तो यहां पे लिख लो 360 डिवाइडेड बाई 45 डिग्री, ठीक है। 180 को 8 नहीं आ जाएगा ये, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा ना यार, ठीक है। लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो रोम्बस का जो एरिया है भाई, वो क्या दे रखा है 120। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, रोम्बस के एरिया का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हाफ दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, हाफ AC इंटू BD वी कैन से, ठीक है। हाफ दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं यार। हमारा क्या हो जाएगा, वी कैन से हाफ दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, वी कैन से AC इंटू BD, उसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक डायगोनल की वैल्यू हमें दे रखी है 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा BD हमारा क्या आ जाएगा यार, 24 से पहले ये 2 कैंसिल होगा 12, और BD हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। ये आ गई हमारी BD की वैल्यू, मतलब एक डायगोनल की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब जो साइड की वैल्यू हमें निकालनी है ना, जो साइड की वैल्यू हमें निकालनी है, वी कैन से OB जो साइड है, जो वो क्या होगा 10/2, और दूसरी जो साइड है, मतलब O हमने OB O साइड नहीं एक्चुअली, O जो है हमने सेंटर ऑफ द रोम्बस मान लिया है। O क्या मान लिया है हमने, सेंटर ऑफ द, और OA को क्या बोल सकते हैं AC/2, OA को क्या बोल सकते हैं AC/2, ठीक है। AC क्या है हमारा, AC था हमारा 24/2, एक आ गया 12, एक आ गया 5, ठीक है यार। ये OA ABCD समझ में आ रहा है आपको, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये आपका मान लिया एक रोम्बस है, ठीक है। ये आपका O है, तो OA आ गया हमारे पास, कितना आ गया O आ गया हमारे पास 12, और OB कितना आ गया था 5। हमें पता है डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। जो यार रोम्बस का एरिया होता है वो क्या होता है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है, तो हाफ डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो ये डायगोनल 1 था AC, जिसकी जगह हमने 24 लिख दिया, ठीक है। तो यहां से BD की वैल्यू आ गई, BD आ गया, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यहां से OA और OB आ गया, ठीक है। लेट वी मूव टू द 13 ही आंसर है ना इसका, B। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, लेंथ दे रखा है, मान लिया लेंथ हो गया 4x, ब्रेड्थ हो गया 3x, और हाइट हो गया लेट्स से 6x। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या, इसको 576 को इधर ही रहने दीजिए, ये आ गया 4 × 12 6 72x³, ठीक है। तो x³ आ गया 576 डिवाइडेड बाई 72। तो सॉल्व करना आता है, कैलकुलेशन आती है, यहां से x सॉल्व करोगे ना सिंपल, ये तो पहले 8 आ जाना चाहिए आई थिंक, है ना। तो x आपका x³ 8 आ गया, तो x आ गया 2। अब सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, तो सारी साइड्स पता लग गई हमें, 8, ब्रेड्थ हो गई 6, और हाइट हो गई 12। सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स LB BH LH,
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है सभी बच्चों ने। ये आ जाएगा 432 आ जाएगा कैलकुलेटर, बहुत सिंपल। ठीक है, लेट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 बनता है, 2 बनता है, 3 4 5 6। कोई डाइस देखा है आपने जिसमें इसके अलावा कोई और नंबर आता है? नहीं। तो हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लेस देन 4, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 6। ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितने हो गई? 1/2 आ रहा है यार आंसर हमारा, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। ठीक है, लेट मी मूव टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये है, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा और तो कोई रास्ता नहीं है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो कर लो, आप इसको सॉल्व करो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, 5x प्लस 6x। इसको सॉल्व करोगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x विल बी माइनस 5x, और यहां से भी प्लस का 6 आएगा, यहाँ पे होगा माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x। ठीक है, ये आ गया कुल मिला के। तो ये 5x से यार 5x गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से 6x स्क्वायर गया। लेकिन ये 6 प्लस 6 हमारा 12 माइनस 2x, ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, ये 0 के इक्वल दे रखा है यार, ये 0 के इक्वल दे रखा है, हमने देखा ही नहीं। 12 माइनस 2x हमारा 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 12/2 सिंपल 6 आ जाएगी। 6 तो है यार। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमें दे रखे हैं पॉलीहेड्रन के 7 फेसेस हैं और 10 वर्टिसेस हैं। ठीक है, क्या किसी बच्चों ने ये वाली बात पढ़ी कि पॉलीहेड्रॉन में f फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल टू क्या होता है? 2। f प्लस v माइनस e इक्वल टू 2 होता है, और हमें क्या निकालना है? एज निकालना है। ठीक है, पढ़ा है क्या आपने? ये क्या होता है? ये होता है फेसेस। ये क्या होता है? ये होते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो फेस कितने दे रखे हैं? 7। वर्टेक्स कितने? अब आप इसे ना, अब बोलोगे सर हमने तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। तो यार आप बड़े आराम से ना कोई भी एक पहला पॉलीहेड्रन एग्जांपल लेकर खुद से उससे कर सकते हो ये काम। ठीक है, अपने आप से फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 प्लस 10 माइनस ई इक्वल टू 2। तो ई तो उधर चला जाएगा, 17 माइनस 2 15 मस्ट बी द आंसर। 15 हमारा आंसर आ जाएगा। वाह, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 18। अच्छा, पता है आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने का तरीका पता है क्या कि सभी बच्चों को, कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम निकालते कैसे हैं? आपने कभी पढ़ा है 2n का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये वाली बात आप लोगों ने कभी पढ़ी है ना? कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है यार, ये n स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहां पर अगर हम देखें, जो सबसे छोटी चीज है, जो सबसे छोटा ट्रिपलेट है, और ये n ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, वो 2n है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। यहाँ पे याद रखना n 1 से बड़ा होता है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का रामबाण फॉर्मूला है। तो अगर हमारा 2n क्या है? 18 है, तो n क्या हो जाएगा हमारा? 9। रखो चलो, तो ये क्या हो जाएगा? 18 स्क्वायर प्लस 9 क्या होता है? 9 स्क्वायर होता है 81। 80 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 81 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। 81 प्लस 82 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 80 और ये हो गया 82। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में जो बाकी आप सॉल्व करके देख लो, यही होगा। ठीक है, तो 18 80 82 डी मस्ट बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यार ये वाला बहुत ही स्टार मार्क फॉर्मूला है, ये हमने पढ़ा भी था स्क्वायर्स के क्लास में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है हमें देखने में। फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है क्या सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों ने फ्रीक्वेंसी निकालनी सीखी है? या नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 से 50 के बीच में कितने? 4। ठीक है, 40 से 50 के बीच में कितने दे रखे हैं हमें? 4। अगर हम काउंट करें 50 से 60 के बीच में 8, फिर 3, फिर 3, फिर 2। ठीक है, काउंट करो यार, 40 से 50 के बीच में कितने आ रहे हैं? 1 2 3, ठीक है, 4। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? 4। 50 से 60 के बीच में लिख लो, काउंट करो। ठीक है, आप काउंट करोगे ये आएगा। ठीक है,
अब इन सभी बच्चों को आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हमारे। तो फ्रीक्वेंसी अगर 70 से 80 के बीच में बोला जाए तो कितना हो जाएगा 3। 70 से 80 के बीच में अगर हमसे फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो कितना हो जाएगा 3। लोअर लिमिट ऑफ 70 to 80 क्लासेस 70, यार ये तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब 70 से 80 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 70 से 80 के बीच में आपका 72 है, 71 है, और कहां से आ गया 70 से 80 के बीच में 3 बच्चे हैं ना हमारे, तो 78 आ गया, ठीक है। तो ये पहला का आंसर 3 हो गया, दूसरे का आंसर 70 हो गया। अब क्लास साइज यहाँ पे कितनी है, क्लास साइज यार होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 की क्लास साइज है, 10 की क्लास साइज है हमारी, ठीक है। यहाँ पे तो 370 10 ऐसा कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ऐसा, 370 10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको ऐसे अगर आप टेबल नहीं भी बनाते तो भी आप काउंट करके बता सकते जी। तो ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रोम्बस की बात चल रही है हमारी। इसको पहले हम ना ऑप्शन गायब करके यार बना के करते हैं आराम से, ठीक है। तो ABCD इज अ रोम्बस है ना, पार्डन माई ड्रॉइंग। तो डायगोनल की एक की लेंथ है 16, एक की लेंथ है 12, ठीक है। द लेंथ ऑफ द, तो अगर पूरी लेंथ 16 है तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 2। OA को मैं ऐसे बोल दूं AC डिवाइडेड बाई 2 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। OB कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ, ये 90 पे होता है डायगोनल, हमें पता है रोम्बस के डायगोनल कितने, अभी एक और क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसा। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 100 10 आ जाएगा रूट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C, सिंपल है ना यार। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना हमारा। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 99,999, ठीक है। और हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर हम सबट्रैक्ट करें कि वो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर हो। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, सॉरी दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यार सबसे ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया। तो सबसे पहले ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू कीजिए, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो लास्ट में ना जो आपका रिमाइंडर बचेगा, आई थिंक जो रिमाइंडर बचना चाहिए लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो आई थिंक 143 बचना चाहिए, है ना, 143 बचना चाहिए। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 143 बचेगा। एक बार करना है आपने खुद से सॉल्व बाय लॉन्ग डिवीजन। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो यही हो सकता है। तो अगर 143 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 143 अगर इसमें नहीं होता तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता। अब इसमें से 143 सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। आप इसमें से 143 सबट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 99856, ठीक है। तो ये है ग्रेटेस्ट। तो अगर रिमाइंडर 0 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। तो ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है जी। बी इज द राइट आंसर, है ना। लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट एक बार निकाल दीजिएगा आप, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन से एक बार इसका स्क्वायर रूट सभी बच्चे निकाल लीजिएगा। सभी को पता है कैसे वो पेयर बना के करते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। फिर हाँ सबको पता है जी। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर क्लास, ठीक है। तो पहले यार इसकी ऑप्शंस गायब कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, चलो बहुत बढ़िया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आसानी से करते हैं ना ऐसे। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर, रेडियस जो है वो इज हाफ, वो हाफ कर दिया रेडियस, अच्छा। और हाइट को सेम रखा, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम रिड्यूस, अच्छा ओके। मान लिया जो हमारा ओरिजिनल सिलेंडर है, ओरिजिनल जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और जो रिड्यूस्ड सिलेंडर है उसकी रेडियस को हमने क्या कर दिया है, उसकी रेडियस को हाफ कर दिया है। तो आर की जगह r/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हाइट को सेम रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बाई 4। तो रिड्यूस्ड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमने बहुत किया है यार ये हमने, है ना क्लासेस में, दिस डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच। तो यार 1/4 आना चाहिए ना हमारा, 1/4 करके आंसर है, 1/4 करके आंसर है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन रह गया यार, एक और क्वेश्चन रह गया हमारा। 1,1 एक पॉइंट है,
ये किसका सबसे पास में होगा, ये सबसे पास में किसके होगा। अब देखो क्या ये एक्स एक्सिस के सबसे पास में होगा, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये 1 डिस्टेंस पे है। वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 1 डिस्टेंस पे। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 डिस्टेंस पे। तो ओरिजिन √2 तो यार 1.414 समथिंग होता है ना कुछ। तो ये एक्स एक्सिस के भी क्लोजेस्ट है और वाई एक्सिस के भी क्लोजेस्ट है, इक्यू डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, डी। तो ये हमारा इक्यू डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, पक्का। तो इतना ही है, मैथ्स का पेपर हमारा इतना ही है, अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट के लिए इंतजार करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू। हे दोस्तों, तो हमारे एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे आ जाते हैं यार हम लोग, ठीक है। और इस एप्टीट्यूड वाले पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमको दिखाई दे रहा है, कंट्री और प्रेसिडेंट का रिलेशन जो होता है वही रिलेशन स्टेट का किस चीज के साथ होता है, ठीक है। ये हमें बताना है कि कंट्री और प्रेसिडेंट का जो रिलेशन होता है वही रिलेशन वी कैन से कि स्टेट का किस चीज के साथ होता है। तो आपको पता है नॉमिनल हेड ऑफ कंट्री क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, सही बात है ना। नॉमिनल हेड है ना, नाम के हेड, ठीक है। वैसे तो काम कोई भी करे भले ही, ठीक है। तो नॉमिनल हेड ऑफ कंट्री जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। सिमिलरली नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट विल बी द गवर्नर, ठीक है। सी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, लेट मी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। यहां पर यार कुछ ऐसे बोला है, गुणा का मतलब भागा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन साइन इज लाइक डिवीजन। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, डिवाइजन लिख देता हूं, ठीक है। एक एक करके करते रहते हैं। डिवीजन का मतलब क्या लिखा हुआ है, प्लस, ठीक है। इसको मैं प्लस लिख देता हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस जहां पे लिखा है वहां पे क्या लिख दो, मल्टीप्लाई। और प्लस का मतलब है माइनस। अरे वाह, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिख दिया हमने, क्वेश्चन में ही चेंज कर दिया, पक्का समझ में आ रहा है आपको। अब बॉडमास बदमाश रूल पढ़ा है आपने, ठीक है। बॉडमास, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होंगे, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 8, सबसे पहले आ गया, माइनस में 6, ठीक है। तो 20 और 15 कितने होते हैं, 45, ठीक है। 20 और 15 45 होते हैं ना हमारे। यार 45 हो गया यार, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 15 इंटू 3 45, ठीक है। देख रहे हो ये क्या हाल है दूसरे क्वेश्चन में। तो 45 प्लस 20 65 होता है, तो 64 हो जाएगा, 19 है तो ये क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 2 बी इज द आंसर। पक्का समझ में आ रहा है भाई सभी बच्चे को, बोल देना एक बार, ठीक है। वीडियो है वैसे तो रिकॉर्डेड, आप बोल नहीं सकते, बट फिर भी बोल देना यार, ऐसा क्या है, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक लड़के को इंट्रोड्यूस कराते वक्त एक लड़की ने बोला कि ये बेटा है इकलौती बेटी का फादर ऑफ माय अंकल की। ओहो, उल्टे से समझना शुरू करते हैं इसे, ठीक है। तो फादर ऑफ माय अंकल, अंकल के पिताजी, अंकल बोलते हैं चाचा, और चाचा के पिताजी क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर, मतलब दादाजी। दादाजी है ना, ग्रैंड फादर हो जाएंगे, ठीक है। फादर ऑफ माय अंकल, तो ग्रैंड फादर की बेटी वो क्या हो जाएंगी, ग्रैंड फादर की बेटी क्या हो जाएंगी, मम्मी हो जाएंगी, है ना। ओनली मम्मी तो हो जाएंगी यार, ठीक है, मॉम ही तो हो जाएंगी। ग्रैंड फादर की बेटी, ठीक है। मेरे दादाजी की ओनली बेटी, इकलौती बेटी, मेरे दादाजी की इकलौती बेटी, वो कौन होगी, मेरी मम्मी होगी, ठीक है, उनकी जो बेटी होगी। तो उनका जो बेटा है, उनका बेटा क्या होगा, मेरा भाई होगा यार, और क्या होगा मेरा भाई होगा, ठीक है, पक्का। तो आप और भी तरीके से कर सकते हो यार, ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, हम पैटर्न ढूंढने होते हैं ना, पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे नेचर में भी हमारे पैटर्न होते हैं, ऐसे ही इसमें भी पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। लाइक 9 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 27, पता लग रहा है ना हमें, वाओ। अब 27 प्लस 4 किया तो क्या आ गया, 31। 31 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, ठीक है। देख रहे हो, ऑड नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इवन नंबर जोड़ रहा है, और प्लस में 6 करो तो क्या आ गया, 161। 161 इंटू 7 क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और प्लस में क्या करना पड़ेगा, अभी 8, इसमें 8 जोड़ दो यार, ठीक है, 1135 आना चाहिए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लाइक कोडिंग, हमारा कोडिंग है।
इसको इसके सुर पहचान। अब यार ये कुछ ना क्वेश्चंस मैं पहले से भी सॉल्व करके आया हूं, इसलिए अगर मैं जल्दी पहचान लूं तो आप ऐसा मत समझना कि मिरेकल कर दिया। देखो सच सच बात बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर 35 प्लस 48 50 40 कैसे हो सकता है, एक एक करके देखते हैं। चलो 3 अलग अलग चीजें ट्राई करो, इसको इंडिविजुअल यूनिट्स में तोड़ लो, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स में तो पहला स्टेटमेंट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8, ये कितना आ रहा है 20, 40 तो ये भी नहीं आ रहा। ऐसे अगले वाले में एक बार देखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना आ रहा है 5 और 7 12, 36 तो ये भी नहीं आ रहा। अगले वाले को भी एक बार देख लो 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, ये कितना आ रहा है 5 और 1 6, 6 और 7 13, 52 तो ये भी नहीं आ रहा। लेकिन 20 मल्टीप्लाई 2 40 होता है, 12 मल्टीप्लाई 3 36 होता है, 13 मल्टीप्लाई 4 52 होता है। वाह 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 वाह, मिल गया पैटर्न। अगली बारी में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 2 और 3 5 मल्टीप्लाई 5 25 होना चाहिए भाई आंसर, ठीक है, डी आंसर है जी। नाउ हमारे सामने 46 क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, इसको बड़े ध्यान से देखना है सभी बच्चों ने। यहाँ पे हमें हेल्थ नाम का एक वर्ड दिया हुआ है। अब इस हेल्थ नाम के वर्ड को की कोडिंग हमें दी हुई है, ठीक है, और वो दी हुई है GSKZDH, ठीक है। तो हेल्थ को यार जी से अगर हम रिलेट करें, फिर ई का एस से तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है, सही बात है। फिर ए का हमारा के से यार, फिर एल का जेड से रिलेशन, मतलब नंबरिंग से करते हैं ना ये कोडिंग वाले क्वेश्चन, बट यहां पे नंबरिंग से या उनको नंबर असाइन करके मुश्किल लग रहा है यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम एक दूसरे तरीके से कुछ सोचें, पीछे से जरा देखो, है ना, इस हेल्थ वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में एक बार देखो, इस हेल्थ वर्ड को एक बार रिवर्स ऑर्डर में देखिए कि क्या आता है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं इसी हेल्थ वर्ड को लिख दूं तो ये हो जाएगा HTLAEH, ठीक है। अब H का जो क्या होता है ABCDEFGH, इससे पिछला वर्ड क्या है G, इससे पिछला वर्ड S, KL, A से पिछला वर्ड तो Z ही होगा, ठीक है, लास्ट एकदम सर्किल अगर घुमा दे हम 26 लेटर्स का। E से पिछला वर्ड क्या होगा D होगा, और H से पिछला वर्ड क्या G। अच्छा, तो नॉर्थ का कैसे करेंगे, फिर नॉर्थ को कैसे करेंगे, पहले तो उल्टा लिखेंगे, जैसे HTRON, फिर H से पिछला वर्ड क्या हो जाएगा G, T से S, R से QR, O से आ जाएगा MNOP, ये आ जाएगा M, ठीक है। बी आंसर आना चाहिए यार, बी आंसर आ रहा है, गजब गजब। 47 क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन इसके लिए करेक्ट बैठ रहा है। अब ये इसका कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, ऑप्शन से बिठाना पड़ेगा। चलो एक एक करके ऑप्शन पुट करते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन ए पुट करता हूं पहले मैं, ये मल्टीप्लाई होता, दूसरा वाला माइनस होता, ये डिवीजन होता, और ये इक्वल टू होता, क्या ये सही बैठता। तो 14 मल्टीप्लाई 7 98 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10, क्या ये 9 के इक्वल आएगा यार, आ रहा है यार, पहला ही ऑप्शन आ रहा है यार, 90/10 9 के इक्वल आ रहा है, पहला ही ऑप्शन राइट बैठ रहा है, बाकी चेक कर लेना, राइट बैठ ही नहीं सकता अगर ये क्वेश्चन सही है तो ए ही आंसर है इसका ना। ऑप्शन से पुट करके देख लो, स्टार की जगह यहां पे पहले स्टार की जगह मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर डिवीजन, फिर इक्वल टू, जो ऑप्शन बैठ जाए फिट वही आंसर है। 48 क्वेश्चन पे आते हैं यार, 48 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है जी। चलो आंसर तो बाद में देखेंगे, इसका पहले इसमें जो जो बोल रहा है वो करते जाते हैं। तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है, ये रहा हमारा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर हम ध्यान से देखें कि कैलाश जो है भाई वो हमारा नॉर्थ को देख रहा है। चलो यहाँ पे मान लिया कहीं पर भी होगा यार, कैलाश मान लिया यहाँ पर है, वो नॉर्थ को देख रहा है, और वो 25 किलोमीटर चलता है नॉर्थ में, 25 मीटर चलता है। चलो चल गया भाई वो 25 मीटर नॉर्थ में। यार थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो वो नॉर्थ की तरफ 25 चलता है, वैसे हमें पता नहीं है यार, हमें इसे इन जनरल बनाना पड़ेगा। नॉर्थ की तरफ वो कितना चला, 25 मीटर चला, ठीक है। और फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट मतलब इधर को ले लिया उसने, फिर कितना चला, 30 मीटर चला, लेफ्ट यही हो गया ना यार। फिर वो राइट, उसका राइट क्या होगा, ऊपर को होगा यार, है ना, ऊपर को। अब पार्डन करना है यार, है ना, थोड़ा यार नीचे बनाना चाहिए ना मेरे को, ये यहां से 25 मीटर, यहां से 30 मीटर, ये नॉर्थ है। फिर इस साइड में क्या होगा अगर आप बनाओ तो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट होगा। और फिर यहां से उसने राइट लिया और 25 मीटर ऊपर को चला, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉर्थ की तरफ चला वापस से। ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉच 55 मीटर,
ठीक है, 55 मीटर चलता है, मतलब 30 इधर गया था, 25 ऊपर गया, 55 अगर इधर गया तो मतलब इसके आगे कितना बचा, 30 और इधर गया वो, ठीक है, 30 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 25 इधर गया, ठीक है, 25 गया इस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में गया, ठीक है, राइट। फिर देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो अपने राइट टर्न लेता है। अब जब ऐसे है तो राइट टर्न लेगा तो फिर किधर को आएगा यार, इधर को आएगा, और मूव्स 40 मीटर, इधर को 40 मीटर चलती है, चलो जहां पर भी चला यहाँ पे। अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, अगर आप ध्यान से देखो ना डायगोनल हो जाएगा यहां से, तो ये किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, और ये क्या है, साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है यार ये वाली, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से एक्चुअली वो थोड़ा नीचे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, 40 मीटर मतलब और नीचे होगा वो, ठीक है, काफी नीचे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन आएगी इसकी, ध्यान से इसका आंसर एक बार देख लें थोड़ा सा। आपने कुछ नहीं करना यार, आपने जो ये बोल रहा है फिगर बनाते रहो, जो ये बोल रहा है फिगर बनाते रहो स्टार्टिंग से, फिर जैसे ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये आपका साउथ है, तो आप जब फिगर बनाते रहोगे स्टार्टिंग पॉइंट से तो यू विल सी कि आपका फाइनली ये वाली डायरेक्शन आएगी बस, ठीक है, अपने आप भी करना है भाई, खुद भी। अब ये यार ये खतरनाक नाम भी बहुत सही से रखे हुए यहाँ पे, लालू, लालू की रैंक है 42, हामिद की रैंक है 19 नीचे से, लालू की रैंक ऊपर से, ठीक है ऊपर से। अब इनके बीच में 29 बच्चे हैं, तो एन की वैल्यू क्या है, ठीक है। आप इसे सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं यार, ठीक है। एक लालू है, एक हमारा हामिद है, ठीक है। तो पहले तो ये बोल दो कि मान लिया इनकी क्लास में कितने बच्चे हैं, एन बच्चे, मान लिया इनकी क्लास में, हाँ दिया ही हुआ है एन बच्चे, ठीक है। अब लालू की जो ऊपर से रैंक है, टॉप से रैंक है, ठीक है, टॉप से जो रैंक है वो है 42, ये 42 पोजीशन पे है। हामिद की जो बॉटम से रैंक है वो कितनी है, 19, ठीक है। और इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 19, ठीक है। लालू से इधर कितने बच्चे होंगे, 41, और हामिद से इधर कितने बच्चे होंगे, 18, सही बात है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन बना के, भाई पक्का इतना क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे बोल दो कि समझ में आ रहा है ना। इस वीडियो में कैसे बोलोगे यार, बट फिर भी थोड़ा सा बोल दो यार, ऐसा क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं। तो यहां पर मान के चलते हैं कि हमें ये पता लग रहा है कि अच्छा लालू और इसकी वैल्यू इस तरीके से है ना, मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत भी सभी बच्चों को पता लग रहा है, थोड़ा बहुत भी सभी बच्चों को पता लग रहा है। तो 19 इधर है, 18 इधर है, ठीक है। जी जी जी, क्या बना सकते हैं यार यहाँ पे, हम कैसे बना सकते हैं इसे, एक बार सोच लेते हैं। अब इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 41 इधर है प्लस 29 इधर हैं, इनके बीच में हैं, प्लस 18 प्लस 41 इधर हैं, 18 इधर हैं, सॉरी, है ना। बीच में कितने बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं, 29 बच्चे हैं, 29, ठीक है। और लालू और हामिद को भी हमें जोड़ना पड़ेगा, नहीं उसको उनकी जरूरत नहीं है, यही तो होना चाहिए ना यार एन मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 41 प्लस 29 ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 41 प्लस 29 वी कैन से। अच्छा, एक लालू और हामिद को भी तो जोड़ेंगे, इनको तो हमने काउंट ही नहीं किया ना यार, लालू और हामिद को भी तो जोड़ेंगे, सही बात है ना, लालू और हामिद को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये 70 प्लस 20, ये हो जाएगा 20, 90 हो जाएगा यार, एन हो जाएगा हमारा 90 वी कैन सी, है ना, सी आंसर आ जाएगा इसका, तो आंसर सी आ रहा है, सही है, ठीक है। क्या समझ में आया है ना, सॉरी फॉर टेकिंग टाइम, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे हमारा लालू है, यहाँ पे हमारा हामिद है, लालू से पहले 41 बच्चे हैं, इन दोनों के बीच में 19 बच्चे हैं, इसके बाद में वी कैन से कि हमारे कितने बच्चे हैं, देयर आर 19 बच्चे, मतलब इसके बाद में 18 बच्चे होंगे, और लालू और हामिद को भी जोड़ लें तो 2 बच्चे और, इतने ही तो होंगे ना सारे बच्चे, 41 प्लस 2 प्लस 29 प्लस 18, यही तो होगा एन, तो यही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है लास्ट, ये पेपर फोल्ड किया हुआ है यार, हमने पेपर फोल्ड किया है हमने, तो पेपर फोल्ड किस तरीके से होता है, अब इसी पेपर को अनफोल्ड करें तो यार यही सिंबल मिल जाएगा ना यहाँ पे, अब इसी पेपर को ऊपर ले जाए तो यहाँ पर भी यही मिल जाएगा, इसी पेपर को ये यही मिल जाएगा ना, जैसे पेपर फोल्ड करते हैं, तो ये तो सिंपल है यार, सी आंसर है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हमारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, होपफुली बच्चों ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।
गो प्रेप ऐप के साथ जुड़े रहिए और इस नंबर पे पूछ के आप कोई भी अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।